Uh, okay, students, today we are going to start our discussion about characteristics of periods and groups. This is the second part of your chapter, periodic classification of elements of class 10th chemistry. All right. So let's have a deep discussion of this chapter and this characteristics of periods and groups. Before this, we already have seen that in the modern periodic table, all the 118 elements are classified into periods, 7 periods and 18 groups. All right. Before that, we already have seen the Mendeleev's classification, Robert-Strides, Newland law of octave, etc., etc. So it is suggested to those students who are, it is suggested to those students who have not seen the first video to please go through the first video, then see this one. All right. Yes. So characteristics of periods, first of all, we will see how the various characteristics or different characteristics vary as per the period or within a period. The first characteristic is valence electron. Students, I must tell you, the number of electrons present in the outermost shell are called valence electrons. Okay? So as you can see, this is the third period. Okay, third period. Elements are represented here: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. You can see the first element, that is sodium, is having just one electron in its outermost shell. Another one is having two, then three, four. With the knowledge of your class 9, you must know how to write the electronic configuration, right? 2, 8, 5, 6, 7, and 8, right? So you can see that the number of valence electrons on moving along a period, the number of valence electrons is increasing. All right? Any problem? Fine. This is the first characteristic. On moving left to right in a period, the number of valence electrons in the element increases from 1 to 8. Just these highlighted points you have to remember and you have to note down. That is it. Okay. And as I have already requested you, you must have learned up to minimum up to atomic number 18. And if you are a good student, you must have learned the series of elements up to the atomic number 36. All right. The second thing is valency. Beta, what is valency? You all know the combining capacity of any element is its valency, right? So, valency का केस क्या है? It also depends upon the electronic configuration. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया समझ में आएगा. For example, the electronic configuration of sodium is 2, 8, 1. All right. For sodium, it is 2, 8, 1. Right. For magnesium, it is 2, 8, 2. Right. For aluminium, it is 2, 8, 3. For outermost 3, right? For silicon, outermost is having 4. For phosphorus, outermost is having 5. Sulfur, outermost is having 6 electrons.
and chlorine outermost is having 7 electrons, and on the other hand your argon outermost is having 8 electrons. Okay, so as you can see, all are all atoms combine to get electronic configuration similar to noble gases, okay, and similar to their nearest noble gas. तो इनका कंबाइनिंग कैपेसिटी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल सोडियम से जो नियरेस्ट नोबल गैस है दैट इज नियॉन, एंड नियॉन इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8. ओके, सो सोडियम वांट टू बिकम सिमिलर टू 2,8, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है. वैलेंसी is the number of electrons gained or lost or shared by any atom, right? So ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इट मींस सोडियम का वैलेंसी हो गया 1. In the very similar way, to look like neon, magnesium will lose 2 electrons, okay, its valency is 2. Aluminium will lose 3 electrons, its valency is 3. Silicon, अब सिलिकॉन के पास दो ऑप्शन है, इधर इट कैन रिसीव 4 इलेक्ट्रॉन्स टू लुक सिमिलर टू आर्गन, आउटरमोस्ट में 8 हो जाएंगे, और इट कैन रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू लुक सिमिलर टू नियॉन, right? So instead of, because losing 4 electrons is also a difficult task, taking 4 electrons is also a difficult task. So what silicon will do? It will prefer to go for covalent bonding. Covalent means sharing of electrons, and it will share 4 electrons. Valency, I have told you, number of electrons lost, gained or shared. Okay, so it is sharing 4, that is why its valency is 4. Got it? When outermost is 5, now to lose 5 electrons is a difficult thing, but to gain 3 electrons is easier. So it will gain 3 electrons or share 3 electrons. Non-metals can gain or share, right? 3 electrons. That's why its valency is 3. The same is the case with sulfur. 6 है, इसको 8 होने के लिए 2 share या फिर 2 receive करने हैं. Its valency is 2. Chlorine, to become 8, it has to share 1 electron or to gain 1 electron. Its valency is 1. Okay, but argon already having 8 electrons in the outermost shell, 0 valency. तो valency के लिए हम trend क्या बना सकते हैं? As we move left to right in a period, what will happen? In each short period अगर आप लोग कर लें तो ज्यादा अच्छा है, और long period में जो variation होगा वो हम लोग 11th में discuss करेंगे, not now, because detailed study is required only up to element 18, atomic number 18. Okay, argon. तो short period आपके second and third short periods, that is it. When we move along a period, along a short period, what is happening? The valency of element increases from 1 to 4. पहले 1 to 4 increase करेगा, then decreases from 4 to 0. All right? Any problem? ऐसा ही केस हो जाएगा आपके ऊपर वाले ग्रुप के लिए. What is the above group? Lithium, beryllium, boron, carbon. Above group नहीं बेटा, above period, second period. Okay? Carbon, nitrogen, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. अंडरस्टूड? उनका भी वैलेंसी ऐसे ही वारे करेगा, 1 to 4 एंड देन 4 to 0. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. Atomic size. What is atomic size? Atomic size is the distance between nucleus and outermost electron. Understood? तो आप एटॉमिक रेडियस दे दोगे, बिकॉज एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है, और किसी स्फेयर का शेप आप रेडियस के या फिर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही तो कंपेयर कर सकते हैं. सो वी कैन टेक रेडियस. एटॉमिक रेडियस की मैं बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है. व्हाट इज हैपनिंग when we move along a period जो हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज लगातार डिक्रीज कर रहा है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? साइज डिक्रीज करने के पीछे रीजन है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ये भी सेकंड पीरियड मतलब थर्ड पीरियड है, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल सभी का थर्ड शेल है, बट
as we are moving in sodium, there are 11 protons in the nucleus. In magnesium, there are 12 protons in the nucleus. In aluminium, there are 13 protons in the nucleus. 14, 15, 16 and 17. तो number of protons increase कर रहा है, number of electrons increase कर रहा है on the third shell only. तो उनके बीच में force of attraction भी increase करेगा. As a result, size will decrease. So when we move along a period, we will see decrease in size. Any problem? Understood? So along a period, the size of atoms decreases. These digits you need not to learn. Okay? ये digits आपको learn करने की जरूरत नहीं है. बात समझ में आ रही है? Okay. Next thing, the decrease in the size of the atoms on moving from left to right in the periodic table can be explained as follows. I have already told you this thing. Next thing is metallic character. What is metallic character, beta? Metallic character होने का मतलब है easily जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो मेटालिक कैरेक्टर है. उसके पास मेटालिक कैरेक्टर है. सो यू नो, इनके पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है. He is having magnesium. It is having outermost 2 electrons, and aluminium is having outermost 3 electrons. Silicon outermost 4, phosphorus 5, sulfur 6, and chlorine 7. Right? So sulfur can receive electrons, phosphorus can receive electrons, chlorine can receive electrons, while sodium, magnesium, and aluminium will release electrons. Okay? And silicon generally share करेगा, right? या फिर conditions होने पर receive कर सकता है, but release तो नहीं कर सकता for electrons. So what will say, on moving from left to right in a period, metallic character decreases. देखिए metallic character decrease कर रहा है. Okay? Why metallic character decreases? Because tendency to lose electron decreases. Okay? और इसके पीछे दूसरा रीजन ये भी है, वैलेंसी के अलावा, कि साइज छोटा होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, और जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज कर देगा. आ रही है बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? ओके. सो यस, ऑन मूविंग अलोंग अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. एट द सेम टाइम आप समझ लीजिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ओके, इसीलिए एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे पास मेटल्स हैं, मिड में हमें नॉन मेटलॉइड्स मिलेंगे. मेटलॉइड इज द एलिमेंट विच इज हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल. और एक्सट्रीम राइट में आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे. क्लियर? बात समझ में आ रही है? ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर chemical reactivity. What is chemical reactivity? The tendency to undergo reaction. Okay? और टेंडेंसी टू अंडरगो रिएक्शन या तो स्ट्रॉन्ग मेटल में होगी या फिर स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल में होगी. इट मींस सबसे पहले हमारे पास मेटल है, वो भी बहुत रिएक्टिव है, और सबसे बाद में हमारे पास स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है, वो भी बहुत रिएक्टिव है. बस जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग विद द रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी इज जस्ट लाइक यू नो जस्ट इनवर्स ऑफ वैलेंसी. आप कह सकते हैं वैलेंसी में क्या हो रहा था, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. रिएक्टिविटी क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. ऑलराइट, इनिशियली reactivity decreases and after that increases. बात समझ में आ रहा है? Any problem? ट्रेंड भी क्लियर हो रहा है और उसके पीछे रीजन भी क्लियर हो रहा है. श्योर? ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं. ठीक है? या कॉल करके पूछ सकते हैं. इतना क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? फाइन. नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अलॉन्ग अ पीरियड हम बात कर रहे हैं. तो बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड जनरली देखिए, इधर हमारे पास मेटल है. जो मेटल्स होते हैं इनके ऑक्साइड्स, मैं पूरा ऑक्साइड का एक स्टोरी आपको सुना देता हूं, तो आपको मेटल और नॉन मेटल अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा. ऑलराइट, ऑक्साइड्स का स्टोरी पूरा का पूरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट के ऊपर. सो आई कैन क्लासिफाई oxides into two categories: metallic oxides
and non-metallic oxides. Okay, non-metallic oxides. ध्यान से समझेंगे. मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑफ टू टाइप्स. वो स्ट्रॉन्ग मेटल का ऑक्साइड हो सकता है या फिर वीक मेटल या मेटालॉइड का ऑक्साइड हो सकता है. ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग मेटल का ऑक्साइड है तो दैट विल बी बेसिक इन नेचर. बेसिक होगा, बेस जैसा बिहेवियर करेगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटल ऑक्साइड SMO, स्ट्रॉन्ग मेटल ऑक्साइड. मैं लिख नहीं सकता बहुत ज्यादा बिकॉज आई एम नॉट हैविंग राइटिंग पैड, आई एम जस्ट राइटिंग थ्रू द माउस. ओके, सो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, बट आप पूरा लिख लीजिएगा. स्ट्रॉन्ग मेटल ऑक्साइड. एंड जो आपका वीक मेटल, जिसका मेटालिक कैरेक्टर, मेटल तो है मगर मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा कम है, या फिर मेटालॉइड जैसा है, हम कह सकते हैं मेटालॉइड. ओके, जैसे आपका एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन. ऑलराइट, तो इनका जो मेटालिक ऑक्साइड होगा बेटा, इनका ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होगा. यू नो व्हाट इज एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज अ बेस. ओके, उनको अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया तो वो बेस जैसा रिएक्शन कर देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया तो एसिड जैसा रिएक्शन कर देंगे. आप लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़े हुए हैं. ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो आगे मैं वीडियो जनरेट करूंगा तब पढ़ लीजिएगा. ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दोज ऑक्साइड्स which can act as acid as well as a base. एम्फी वर्ड जब भी आ जाएगा तो उसका मतलब होता है डुअल नेचर शो करने वाले. जैसे एम्फीबिया आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़े हैं, लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, राइट. तो एम्फो का मतलब है एम्फोटेरिक, मतलब डुअल नेचर, एसिड के तरीके भी और बेस के तरीके भी. फाइन. इसमें आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल है Al2O3. जिंक सिलिकॉन ऑक्साइड भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं, लेड ऑक्साइड हो सकता है, बट आपको दो याद रखने हैं जो आपके सिलेबस में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ZnO. ठीक है, इनका रिएक्शन HCl के साथ भी करा दीजिए, NaOH के साथ भी करा दीजिए, दोनों केस में सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज जो आपके, अच्छा ये तो कैटेगरी होगी बेटा मेटालिक ऑक्साइड्स की. ये थोड़ा सा टेबल मेरा फैलता चला जा रहा है, कोई बात नहीं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, मैं कलर चेंज कर देता हूँ. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दो कैटेगरी के हैं. एक जो वाटर में सॉल्युबल है, जनरली ये एसिडिक होते हैं. ठीक है, बट अगर वाटर सॉल्युबल है तभी तो एसिड फॉर्म करेगा. अगर वाटर में सॉल्युबल है तो दैट विल फॉर्म एसिड, यानी वो एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, पानी में घोल दीजिए, कार्बोनिक एसिड तैयार हो गया. अंडरस्टूड? मींस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर इफ इट इज सॉल्युबल इन वाटर. और अगर वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इन दैट कंडीशन, इफ इट इज इनसॉल्युबल, if it is insoluble then who will form acid? ओके, इनसॉल्युबल ऑक्साइड के केस में वो न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल. ऑलराइट, इसका एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं आप. कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये वाटर में नहीं घुलता है, न्यूट्रल नॉन मेटालिक ऑक्साइड है. ठीक है, इट्स माय रिक्वेस्ट कि सारे स्टूडेंट्स इसे एक अच्छे फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट कर लेंगे. ठीक है, सो अब देख लेते हैं मेटालिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या हो रहा है. अलोंग अ पीरियड, जब आप एक पीरियड में मूव कर रहे हैं तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज कर रहा है और एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है. व्हाई? क्योंकि मेटालिक नेचर डिक्रीज कर रहा था और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था. अब आप लोगों को समझ में आ रहा है आसानी से? गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये क्वेश्चंस बेटा आप लोग प्लीज कर लीजिएगा. अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप की बात कर लेते हैं. अच्छा, ग्रुप में क्या होता है बेटा, सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी एक मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, तो वैलेंसी उनका सेम रहने वाला है. ये देखिए, लिथियम 2,1, सोडियम 281, पोटेशियम 281, 881. इसके नीचे क्या मिलेगा आपको?
रबीडियम 2 8 18 8 1, ओके। इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, सीजियम 2 8 18 18 8 1, उसके नीचे फ्रांशियम 2 8 18 32 18 8 1, राइट। तो आउटर मोस्ट में सब में 1 इलेक्ट्रॉन ही है, बात समझ में आ रही है। और जब आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब इट विल शो वैलेंसी 1 ओनली। तो अलोंग अ ग्रुप, जब एक ग्रुप में आप नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम, ओके ओके, डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। आप चाहें तो सेकेंड ग्रुप में भी देख सकते हैं, ये तो फर्स्ट ग्रुप था। सेकेंड ग्रुप इज योर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ओके। इन सब में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका वैलेंसी 2 रहेगा। मींस डाउन द ग्रुप वैलेंसी डज नॉट चेंज, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये ग्रुप 13 का एग्जांपल दिया है, 13 14 15 17 का एग्जांपल दिया हुआ है, राइट। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी सबका 1 रहेगा, ऑलराइट। नोबल गैसेस का एग्जांपल दिया है, सब में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हीलियम उसका एक्सेप्शन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी सबका 0 रहेगा, ओके। सो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हैं किसी वैलेंसी के लिए, तो वैलेंसी रिमेन्स सेम। अच्छा, अभी हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रिमेन सेम एंड वैलेंसी आल्सो रिमेन सेम डाउन द ग्रुप, राइट। यस, वैलेंसी डाउन द ग्रुप रिमेन्स सेम। साइज ऑफ एटम, अच्छा बेटा, जब आप नीचे जाते हो तो पीरियड का नंबर का मतलब होता है, पीरियड नंबर का मतलब होता है कितने शेल्स हैं उसमें, राइट। तो अगर आप नीचे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग, नंबर ऑफ शेल्स इज इंक्रीजिंग, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगा तो साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। इट मींस व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जबकि जब हम अलोंग अ पीरियड जा रहे थे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा था। बात समझ में आ रही है। अलोंग अ पीरियड जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लेकर के एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। जैसे मैंने बोला एटॉमिक साइज के लिए अलोंग अ पीरियड डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, ऐसे करके लिख लेंगे एक ही पेज में सारा, तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से रिवाइज किया जा सकता है इसको, ठीक है। बहुत इजी माइंड मैप बनते हैं इस चैप्टर के। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेटालिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी आसान हो जाएगा, राइट। इट मींस डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर increases, all right, when we move down the group, or non metallic character decreases, right। ये देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, फाइन, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट थिंग इज केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो मेटल्स के लिए केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा और नॉन मेटल्स के लिए डिक्रीज करेगा, राइट। क्लियर हो रहा है। सो इन केस ऑफ मेटल्स डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, and in case of non-metals down the group chemical reactivity decreases, least reactive non-metal, okay। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मैं आपको पहले ही पूरा टेबल दे चुका हूं। सो व्हाट इज हैपनिंग, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है नीचे जाने पर, मतलब सॉरी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। इट मींस फॉर मेटल्स बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, राइट। फॉर मेटल्स डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अच्छा, नॉन मेटल्स के केस में क्या है, नॉन मेटल्स के केस में डाउन द ग्रुप क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो वहां पर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है,
मीन्स बेसिक कैरेक्टर दोनों में ही इंक्रीज कर रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, क्योंकि सबसे नीचे जब आप आओगे तो आपको मेटल्स मिलने लगेंगे। आ रही बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? ओके। Now you have plenty of these examples, and please somebody recall me, I will send this book in the group as well, okay? एंड जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, कहीं से भी फ्री में मिल जाएगा आपको, ठीक है? जस्ट गूगल ड्राइव, टेलीग्राम, और आप बुक्स का बुक ही तो ले रहे हैं, ठीक है? सो इट्स लीगल, डोंट वरी, ऑलराइट? और आप डाउनलोड करके उससे पढ़ लीजिए, या किसी फ्रेंड के बुक से पीडीएफ बना लीजिए। इतने सारे ऐप्स हैं अपने मोबाइल फोन्स का, कुछ पॉजिटिव यूज कर लीजिए, राइट? मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फायदे क्या हैं, इस पे बात कर लेते हैं। The modern periodic table is based on the atomic number of elements, which is the most fundamental property of the elements. Okay, and second, the modern periodic table help us understand why element in a group show similar properties, क्योंकि उनका electronic configuration same है. Third, the modern periodic table explains the reason of periodicity of properties, again क्योंकि electronic configuration repeat कर रहे हैं. Okay, एक regular interval के बाद। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Okay. Fourth, the modern periodic table tells us why the properties of element are repeated after 2, 8, 18 and 32 elements only, क्योंकि यही सेल का कैपेसिटी है। ऑलराइट, एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से फायदे क्या क्या हैं आपको? The periodic table has made the study of chemistry systematic and easy, वरना इतने सारे एलिमेंट्स आप अलग अलग लर्न करते, और 8 टू मेमोरी भी है, आपको एलिमेंट याद रहते हैं इसकी हेल्प से। अगर ऐसे लिखा होता है, एक सोडियम पढ़ा दिया, एक दिन आके पोटेशियम पढ़ा दिया, तो बहुत प्रॉब्लम होता आपको, राइट ना? ऑलराइट, इट इज इजी टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इफ द पोजीशन, इफ इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन पता हो तो आप आसानी से पता कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, कि ऑक्साइड कैसा होगा, और जो है अभी तो आप लोगों ने बहुत थोड़ा सा नॉलेज लिया है इसके बारे में, आगे बहुत सारी चीज़ें आपको और पता चल जाएंगी, ठीक है? मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इतना सब तो आप अभी पता कर सकते हैं। द टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय नोइंग इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। वो कैसा कंपाउंड बनाएगा? आयनिक कंपाउंड बनाएगा। अगर मेटल स्ट्रांग है तो आयनिक बनाएगा, स्ट्रांग नॉन मेटल है और मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आयनिक बनाएगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, राइट? कोवेलेंट बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो रही है बात? Fourth, a periodic table chart is used as a teaching aid in chemistry schools and colleges, जैसे मैंने ही आपको पढ़ाया था periodic table दिखा करके पिछले वीडियो में, राइट? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? इसका एक सिंपल रीडिंग कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डिस्कशन होना ज़रूरी है, बिकॉज आपका क्लास 9th और 10th में, हालांकि साइंस टीचर्स आपको पढ़ाते रहते हैं, बट कहीं पर एक्सप्लेन करके उन्होंने डिटेल में बॉन्डिंग नहीं एक्सप्लेन करवाया है, ओके? सो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और वो केमिकल बॉन्ड दो तरीके का हो सकता है इन जनरल, that bond may be ionic or that bond may be covalent. Okay, so if the bond is ionic, it means वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। अगर ए और बी के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इस मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। एज अ रिजल्ट जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है दैट एटम विल गेट द नेगेटिव चार्ज ओवर इट। अंडरस्टूड? सो कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, इट मीन्स नोबडी इज गोइंग टू शेयर मीन्स ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, जस्ट
sharing of electron will take place. Now this dot electron represents the electron of A and cross electron represents the electron of B, but after formation of bond both of the atom have access to both the electrons. All right, it is called sharing. Any problem getting me? Fine. So this is your covalent bond. It can be represented like this. If it is single, generally non-metals and non-metals, when non-metals combine with non-metals, right, they form covalent bonds. This may be single covalent bond, double covalent bond, or triple covalent bond. When metals combine with non-metal, okay, non-metal, then metals get positive charge over them, non-metals get negative charge over them, and they form ionic compound. Got it? Understood? Fine. This is all about the discussion of this chapter, beta. Now you are just requested to do the questions. Okay, please take the screenshot of all these questions. And if you have the book, it's very good. Do the questions from there only. Apart of these questions, you can do the questions of NCERT. You have to do questions of NCERT and NCERT exemplar, which are easily available on the internet. If you are not having the hard copy of the book, it's okay. Okay. And स्टिल इसके अलावा आप किसी और रेफरेंस बुक का करना चाहें तो कर लें, बाकी ज़रूरी नहीं है. ठीक है, किसी एक रेफरेंस बुक का, किसी भी एक रेफरेंस बुक का, अगर आप इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, किसी एक रेफरेंस बुक के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए और अपना जो है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए. दैट इज इनफ. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं सजेस्ट करूंगा जितने आप प्रैक्टिस कर लें उतने कम है. ठीक है, तो सारे कर लीजिएगा. एंड इवन ये तो मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि अब आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऐड हो गए हैं. तो सिर्फ कॉन्सेप्ट और सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लेने से कुछ भला नहीं होगा. सो दिस इज़ द टाइम जब आपको सारे कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए. ओके, और सो फॉर प्रैक्टिस whenever you study any chapter, just find out a time of 2 to 3 hours and make 100 objective type questions or 100 one word questions, 100 assertion reason type questions. ये सारे का मिलाकर के आप 100 बना सकते हैं. ठीक है, अलग अलग 100 बनाने की जरूरत नहीं है. फ्रॉम योर सेल्फ. ओके, और इन दिस वे ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर चैप्टर विल बी प्रिपेयर्ड. फाइन. इसके अलावा मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए. दिस इज मोर देन इनफ व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर क्लास 10th एग्जामिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आप लोगों ने ज़्यादातर क्वेश्चंस का फोटोग्राफ ले लिया है. जो बचे हैं जस्ट मैं 2 मिनट में एक्सपोज कर देता हूँ. These are the answers, but again I would like to suggest कि आप क्वेश्चंस करने के पहले आंसर्स ना देखें. एक बार खुद से सॉल्व करिए. गलतियां होंगी, कोई बात नहीं है, आंसर देख करके ठीक कर लीजिए, मगर आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं. ठीक है, सेल्फ असेसमेंट इज वेरी नेसेसरी. Fine students, this is all about your chapter, and further we will start with the acid, bases and salts. Okay, till then keep learning, keep studying, keep watching the videos, stay safe and stay healthy. Thank you.